تو اس لیے کوئی ٹینشن مت لینا، اللہ کرے گا خیر ہے انشاءاللہ۔ تو گردے یہ پتے کے مسائل یہ ہیں کہ یہ بس وہ نکال دیتے ہیں، اس کو پتھری ہو گئی، اب بھائی وہی ناکارہ ہو گیا، اس کو نکالو۔ اب خدا جانے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ باپا پتے کے اوپر کلیجہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر چربی بھی ہو گئی، تو اس کا بھی یہ کاٹیں فیٹی گے؟ لیور، جی جی جی۔ اللہ خیر کے فیٹی لیور تو تقریباً کو ہو جاتا ہے، اب کچھ آپ کو زیادہ ہو گیا ہوگا کیونکہ وہ کھایا، یہ بیٹھ گئے۔ مسجد میں جانا ہے تو کار سنبھالی یا اسکوٹر، تو اس طرح، اور پانی پینا ہے کم، پانی نہیں پیتے، خالی دیکھتے ہیں یا سونگتے ہیں، تو پھر یہ فیٹی لیور بھی ہوتا ہے، اور بھی مسائل ہوتے ہیں پانی کم پینے سے۔ پانی تو 8-10 گلاس تو بندہ پیے رات دن کے اندر، اور بھی اس سے بہت مطلب ہے کہ نقصانات ہیں پانی نہ پینے کے، اور لوگ بیچارے تکلیفوں میں، گردے جو فیل ہو رہے ہیں، اس میں بھی ایک وجہ یہ ہے پانی کم پیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے کہ اپنی صحت کی، عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے حفاظت کریں، آمین۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ، اللہ خیر کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پتھری وغیرہ نہیں ہے آپ کو، الحمدللہ۔ بعض اسلامی بھائی اپنے آپ کو دعوت اسلامی والے کہتے ہیں، مگر مرکزی شورا کے اوپر، اراکین شورا کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ باپا کو انہوں نے قید کر لیا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اور کیا فریدوں نے پیر کو قید کر لیا، نئی آئی ہے، ہاں لیٹسٹ، تو میری قید میں سارے سارا مرید جو ہوتا ہے پیر کی قید میں ہوتا ہے نا، مرید کا معنی ہے کہ بک جانا۔ اللہ پاک خیر کرے، لوگ باتیں کرتے ہیں، پہلے زیادہ کرتے تھے، اب کم کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مطلب مرکزی مسجد شورا والے جو ہیں اسلامی بھائی بشمول نگران، یعنی کہ میں کیا کہوں، اتنے فرما برداری میری کرتے ہیں، کوئی ابھی تک نہ مجھ سے منماری کی ہے کسی نے، نہ میری بات کو یہ کہا کہ ہم نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، بلکہ یہ ماشاءاللہ اتنی ہم لوگ ترکیب سے پھونک پھونک کے لیتے ہیں، اس سے ہر ایک کو نہیں لے لیتے، تو لیا ہے کہ یہ آپس میں بھی نہیں لڑتے۔ میں نے کئی ان کے اجلاس بھی اٹینڈ کیے مدنی مشورے، اس میں بھی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی تو میں کی ہو کہ یہ غلط ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، تو فلاں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ یہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن مطلب اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، کبھی مطلب ہے بدتمیزی کرتے ہوئے، جیسے ہماری اسمبلیوں میں کرسیاں اچھلتی ہیں اور دھمکیاں ملتی ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی میں اللہ کی رحمت ہے، شاید یہ واحد ادارہ ہے دعوت اسلامی جس میں مارا ماری اور لڑا لڑی نہیں ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے۔ آپ بتائیں کہاں لڑا لڑی ہے، کہاں مارا ماری ہے؟ اب کوئی نچلی سطح پہ آپس میں لڑ جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اوپر کی سطح پہ آپ بتائیں سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے نہیں کرتے، کہاں لڑتے ہی ہیں؟ اگر یہ لڑے تو بھی دین کا کام کر نہیں سکتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک میری مرکزی مسجد شورا کو نظر بد سے بچائے۔ تو جو ایسا کہتے ہیں نا، ان کو دعوت اسلامی والا کہنے کی میری طرف سے تو اجازت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا نہ کہے۔ جو میری مرکزی مسجد شورا کو برا بھلا کہتا ہے تو میرے نزدیک دعوت اسلامی والا نہیں ہے۔ اب اپنے نزدیک ہو تو ہوتا رہے، تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے نا کہ اپنے ماں باپ کو ہی برا بولو گے تو گھر کیسے چلے گا؟ گھر میں ماں باپ کہاں آپ کو پسند کریں گے؟ ایسا نہ کیا جائے۔ نہیں، اس طرح بھی بولتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو یار یہ غلطی تو میں نے کی نا، تم مجھے صحیح کہتے ہو کہ ایسے نادانوں کو میں نے مجلس شورا میں لے لیا، تو میں غلط تو ہو ہی گیا نا، تو بچا کیا آپ کے پاس؟ نہ طریقت بچی، نہ دعوت اسلامی بچی۔ انڈرسٹوڈ ہے مجھے، مطلب ابھی میں ظاہر ہے کہ وہ بچہ تو نہیں ہونا نا، الحمدللہ ہم مل جل کر سوچ سمجھ کر رکن شورا بناتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک بھی رکن شورا اب تک ایسا نہیں ہے کہ جو میرے اپروول کے بغیر رکن شورا بناؤ، تو میں الحمدللہ ابھی ایکٹیو آپ کے سامنے، اللہ پاک مجھے ایکٹیو رکھے، اور میری عقل سلامت نہ ہوتی تو میں آپ سے اس طرح بیٹھ کر سوال جواب کیسے کرتے یار؟ اللہ نے کرم کیا مجھ پر، یہ اس کا احسان ہے کہ اس عمر میں بھی میں چلتا پھرتا ہوں اللہ کی رحمت سے، اور دعا کریں کہ میں آخری سانس تک دین کی خدمت کرتا رہوں۔ اور یہ میری مرکزی میں شورا پر بس یہ آپ
अपनी आंखें बंद रखें इंशाअल्लाह। जब तक ये खिलाफ शरा हुक्म नहीं करते। हाँ, शरीयत के खिलाफ हुक्म तो मैं भी करूँ तो नहीं मानना है, अंडरस्टूड। हम तो मतलब अल्लाह और रसूल के अहकाम के पाबंद हैं। जो शरीयत के खिलाफ बोले तो उसका तो सवाल ही नहीं, अपने बाप की भी नहीं माननी, हमारी माननी है, तो अंडरस्टूड है। तो यूं दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा पर जब तक आपका एतमाद नहीं होगा उस वक्त तक आप काम कर भी नहीं सकेंगे, आपको बस वैसे आते ही रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर तावीज़ वगैरह मिल जाए ऑपरेशन के दौरान, अगर साथ रहे तो आपका, सुभान अल्लाह, आपका मिल जाए, वो जैसे लोग बोलना है मेरी दुआएं आपके साथ है, मतलब मेरा ये अंदाज नहीं है, मैं खुश तभी में बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह करीम आपका ऑपरेशन जो है कामयाब भी फरमाए और कोई आपको बड़ा साइड इफेक्ट भी ना आए। मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें 19-20 तो होता है, ऑपरेशन है, जज़ाकल्लाहु खैर, और इंशाअल्लाह रिलीफ भी मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ बच्चे जुलूसे मिलाद में न्याज ज्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, वो उनसे खाई नहीं जाती, तो क्या वो अपने वालिदैन या किसी और को खिला सकते हैं? क्या बात है। अब ऐसी नियाज है कि जो मतलब खाई नहीं जाती ना, समझो चावल है, बिरयानी है, हलवा है, सब पे हाथ मारा है, तो घर में फ्रिज तो है ना, फ्रिज में रख दो, कल खा लेना, कुछ परसों खा लेना। फिर नाबालिग बच्चा अपनी चीज किसी को दे नहीं सकता ना। और बाकी जो सॉलिड चीजें होती हैं, चॉकलेट, टॉफियां, तो बहुत दिनों तक चलती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके खा लेना। हाँ, अगर बच्चा जाया कर रहा है, उसने थोड़ा खा लिया, उसको नहीं खाना, वो इसकी कोई कीमत नहीं है, तो फिर अगर दूसरा कोई खा ले तो वो जायज होता है, वरना उसके इस्तेमाल में ये आ सकती है, तो फिर दूसरा नहीं खा सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पीर मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज है कि या मुर्शिदी, बसा औकात किसी नेक काम की या काफले की नीयत की जाती है या करवाई जाती है, तो वो नेक काम हो नहीं पाता, या अगर काफले की नीयत की है तो वो काफले में सफ़र नहीं हो सका, तो अगले माह फिर नीयत करवाई जाती है या की जाती है, तो अगले माह फिर जो है वो किसी मजबूरी के तहत सफ़र नहीं हो सका या वो नेक काम नहीं हो सका, तो जब तीसरी बार नियत करने की बारी आती है तो ज़हन में कुछ इस तरह के वसवसे भी आते हैं कि पहले भी 2 दफ़ा नियत की थी मगर वो काम नहीं हो सका, अब फिर नियत करेंगे तो फिर शायद वो काम ना हो सके। तो इस वाले से कोई रहनुमाई अता फरमा दें कि क्या आया तीसरी दफ़ा भी नियत करके उसकी कोशिश की जाए, या साबका जो 2 दफ़ा नियत करके काम ना हो सका उस पर जो है वो और कर लिया जाए। इस वाले से कुछ रहनुमाई अता फरमा दीजिए। पीछे हट नहीं करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि बार 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 कोशिश करें। अस्सायो मिन्नी, कोशिश मेरी तरफ से है, वल इत्मामु मिनल्लाह, और इसकी तकमील इसको पूरा अल्लाह पाक करेगा। तो हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए, जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। तैमूर लंग की तरफ मंसूब ये वाक़या है कि ये मतलब पसपा होकर हार कर किसी गार में पनाह गुज़ी हुआ, तो खाने बैठा तो एक कीड़ी ने दाना उठाया फिजा का जो इसके कद से बड़ा था, तो उसको ये चलकर यूं तो घसीट कर गई, अब दीवार पर चढ़ने लगी, आ गिरी, फिर उसने दाना उठाया, फिर चली, फिर चढ़ी, बार बार गिरती थी और चढ़ती थी, गिरती पड़ती, आखिरकार इसको जहां जाना था अपने बिल में ये लेकर जाने में कामयाब हो गई। तो इस पर वो तैमूर लंग ने ये इबरत हासिल की कि ये कीड़ी हिम्मत नहीं हारती है, बार बार कोशिश करके आखिर मंजिल पा लेती है। मैं तो मर्द हूं, मेरे पास तो फौज भी है। खैर इसने अपने बिछड़े हुए बिखरे हुए जो भी थे फौजी लश्करी, उनको सबको जमा किया और एक बार फिर उसने इनका जो भी दुश्मन था उस पर हमला किया और अपनी जो खोई हुई रियासत थी, जो ये हार गया था और कब्जा हो गया था, वापस दुश्मन को मार भगाया और अपनी रियासत या अपनी जो भी हुकूमत थी उसको उसने हासिल कर लिया एक कीड़ी से। तो ये जो मतलब ये थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर करते हैं और फिर जो बोला आ छोड़ा नहीं होता। तो ये फिर कीड़ी से भी गए गुजरे हुए ना। न हो मायूस,
आती है सदा गोरे गरीमा से, नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। नेकियों में कोशिश छोड़ने वाली नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, इंशाअल्लाह कभी न कभी तो पार लग जाएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल है कि आजकल मोबाइल के ज़रिए कुछ लोग गेम खेलते हैं और उस पर शर्त लगाते हैं और पैसे हासिल करते हैं। अब ये शर्त लगाना कैसा है? अगर शर्त लगाना हराम है, अब बंदे ने तौबा कर लिया है, तौबा करने के बाद उसने जो उस ऐप से, गेम से मुनाफा हासिल किया था, अब हर एक शख्स को वो वापस तो नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप के ज़रिए था। अब वो रकम आप इरशाद फरमा दीजिए कि उसको कहाँ खर्च करना चाहिए। माशाअल्लाह, आपको मसला मालूम है, मालूमात की होगी ना आपने। ये कि ये जुआ के जरिए जो हासिल हुआ ना, ये हराम, और ऐसा हराम है कि हमारी मिल्क नहीं बनता। ये जिससे जीते हैं ना, उसी को देना होगा, और तौबा भी इस पे फर्ज है, तौबा भी करनी है। खुद गेम बगैर इसके भी जो गेम जो चल रहे हैं उमूमन, उसमें म्यूजिक, लेडीज और खुदा जाने क्या क्या होता होगा, और वायात, खुराफात, ये लहव लईब का समझो मजमुआ। तो इसलिए वो वैसे भी नहीं खेलना चाहिए, बच्चों को भी खेलने से रोकना चाहिए। ऐप के ज़रिए अगर पता ना चले कि किस किस से हासिल किए हैं तो फिर उस रकम का क्या करना चाहिए? अब ये कि जैसे कोई गायब है तो उसकी औलाद अगर है, वारिसीन, उनको दे, जो मसाइल है इसके, वरसा को दे। अगर वरसा भी गायब हैं, कुछ पता नहीं चलता किसके हैं, ऐसी सूरत में इसको मालिक की नीयत से खैरात कर दे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी मोहम्मद शम्स अली अतारी हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट से मदनी मुज़ाकरों के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं। आपकी खिदमत में मेरा सवाल ये है, मांग निकालना सुन्नत है, जबकि मर्द दरमियान में से मांग निकालता है, औरत मांग कहाँ से निकालेगी? मर्द औरत दोनों के लिए बीच में मांग निकालना सुन्नत है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम हमजा रिजवी है और मैं लाहौर से जामिअतुल मदीना डिफेंस से आया हूँ 3 दिन के यहाँ पर काफिले के लिए माशाअल्लाह जो ट्रेन आई है। जी आया। और मेरा सवाल ये है कि अगर जब हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं और हम कमेंट करते हैं कि ये सही है, हालांकि वो सही नहीं होता, तो उसके मतलब क्या फरमाएंगे, झूठ होगा सच होगा? यूट्यूब पर तो हर तरह के लोग होते हैं, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया वगैरह, जो भी हो, सिर्फ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए उलमा अहले सुन्नत को। उलमा अहले सुन्नत भी वो जो सहाबा किराम को मानते हो, एक भी सहाबी में कुछ भी ना कहते हो माइनस, और हकीकत में अहले सुन्नत वही है। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं ना सुन्नी होने का, लेकिन वो हकीकत में नहीं होते, क्योंकि वो तनकीद करते हैं सहाबा पर, कभी अहले बैत पर, तो वो ना चले। तो पक्का परफेक्ट सुन्नी हो आप तो हैं भी रज़वी, रज़वी नाम लिया ना, नाम के साथ, और रज़वी तो टनाटन मतलब रजा मार्का होता है ना, आला हजरत छाप वाला। तो फिर अपने ही उलमा को हमने सुनना है और उनको ही पढ़ना है। इनकी तहरीर, दूसरों की तहरीर को ना देखना है, ना पढ़ना है, ना ट्राई करनी कि देखो क्या बोलता है। अपने जिस घर में, जिसके घर जाना नहीं, उसका पता पूछना क्या था। तो गुमराह होते देर नहीं लगती, शैतान घुमा दे। कोई बात दिल पे लग जाए तो ऐसा ना हो कि कोई ईमान को कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। हम लोग हमारे पास इतने इल्म नहीं कि हम इनका फर्क कर सकेंगे क्या दुरुस्त क्या गलत। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर आले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि दीनी इल्म हासिल करने वाले को सबसे पहले कौन सी आदत या अमल को अपना लेना चाहिए? जो इल्म हासिल किया, जो इल्म तो वो बाकी कैसे रहे, इस पर गौर करे। कि वरना कई दरस निज़ामी याफ्ता होते हैं, बहुत कुछ पढ़े हुए होते हैं, लेकिन भूल भाल जाते हैं। जब
इसको अपनाते नहीं हैं। अब जैसे कि ये इस तरह बाकी रहेगा, पढ़ाता रहे, इल्म पढ़ाने से कम नहीं होता, बढ़ेगा। तो जो पढ़ा है वो पक्का भी हो जाएगा, वरना भूल जाएगा। और ये कि अमल भी मतलब निहायत अहम है, वरना वो बगैर अमल के जो इल्म है इसकी ने काफ़ी यानी कि बुजुर्गों ने इसकी ताकीद की है कि अमल बहुत ज़रूरी है इल्म पर। ये भी बल्कि फर्स्ट तो यही रहेगा, अमल कैसे हो, अमल करता रहे इस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी है और मैं फूलनगर से आपके बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ट्रेन में नमाज पढ़ सकते हैं? ट्रेन में नमाज का मसला है कि जब ट्रेन चल रही हो उस वक्त फर्ज, वित्र और सुन्नत फज्र ये चलती ट्रेन में ना पड़े। ये पढ़ी जाएगी जब ट्रेन या तो फुल रुकी हुई हो, या फिर इसमें भी रिस्क है कि बाद होगा ये कुछ करते हैं ना, डब्बे बदलते हैं या मतलब तो हिल जाती है, हिल गई थोड़ी सी भी हिल गई तो फिर ये नमाज नहीं होगी। सुन्नत फज्र, फर्ज और वित्र ये तीन नमाजें इसमें शर्त इस्तिक़रार कहते हैं इसको, ठहराव। बाकी नमाजें इसमें हो जाएंगी, सुन्नत वगैरह दीगर। और अब वक्त अगर जा रहा है तो कज़ा भी नहीं करनी, नमाज पढ़ लेनी है वो भी जो फर्ज वगैरह, और बाद में इसको जब ट्रेन रुक के तब या बाद में इसको मतलब अदा कर ले, नीचे उतर कर या घर पहुंचकर। अब ये जो कज़ा हो गई इस तरह तो ये गुनाह नहीं होगा, मजबूरी थी और ट्रेन में इसको पढ़नी पड़ी थी, ट्रेन रुक नहीं रही थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी सवाल था कि जब हमें काफ़िलों के हवाले से अहदाफ मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जितना हो सके ज़ैली ज़िम्मेदारान तक उन अहदाफ को तकसीम भी करते हैं, उन पर कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन अहदाफ में हमें मुकम्मल तौर पे कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। तो इस वजह से बाज़ औक़ात हमें एक मायूसी छा जाती है और बाज़ औक़ात गुस्सा भी आ जाता है। तो उस वक़्त हमारा जो ज़ैली सतह के ज़िम्मेदारान होते हैं उनके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। गुस्सा इसलिए आता है कि लोग काफिले में सफर क्यों नहीं कर रहे, यही ना? जी जी। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को तो ये फरमाया था कि मतलब ये इन्हें जो कानून है कि ये पहुंचाएं, तबलीग का माना पहुंचाना, मनवाना नहीं है। तो ये सब नबियों ने पहुंचाने का जो इन हजरात को काम दिया गया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब ने 100% अपनी जिम्मेदारी निभाई। हम भी मतलब यानी कि इनसे यही सीखेंगे, पहुंचाना ही हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं है। हिदायत रब देगा, हम पहुंचाएंगे। तो जब ये जहन बन जाएगा ना कि जब पहुंचाना मेरा काम ही सिर्फ पहुंचाना, तो मैंने पहुंचा दो, दावत तो दी, नमाज की दावत दी, नेकी की दावत दी, सुन्नत पर अमल की दावत दी, काफिले में सफर की दावत दी। अब नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मुझे पहुंचाने का सवाब तो मिल रहा है। काम जो मेरा है पहुंचाना वो तो मैं कर ही रहा हूं ना, मनवाना तो काम है नहीं। गुस्सा खत्म, गुस्से की वजह नहीं रही ना। उस वक़्त जो मायूसी आ जाती है इस हवाले से, मायूसी क्यों आ रही है? सवाब मिल रहा है तो मायूसी का की यार। दिल को बड़ा रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। 100 मरतबा कहना पड़े तभी कहता है बंदा, 100 मरतबा सवाब मिलेगा कहने का। दिल बर्दाश्ता होता है आदमी, कोई बात नहीं, इस पर भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, दिल जलाएगा तो। लेकिन इसकी वजह से कोई अड़ाउड़ी ना कर दे, ना अपने माते तो झाड़ना, ये तो कोई तुक्की नहीं है ना, हमारा नौकर थोड़ी वो, नौकर को भी झाड़ना, इसकी भी फिर सूरत बनेगी, हर सूरत में थोड़ी झाड़ने की इजाजत मिलेगी।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुबैब रसूल लाहौर से आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि जो इस्लामी भाई इशा की नमाज के वितर रात के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं, अब इनके लिए अफजल क्या है कि वो वितर पहले अदा करें या तहज्जुद के नवाफिल अदा करें? और एक और अर्ज़ ये भी है कि जो आपने सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ने की तरग़ीब दिलाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे साथ 3 इस्लामी भाई हैं कि जिन्होंने इस किताब का मुताला कर लिया है और इस अंदाज़ में मुताला किया है कि इसका हमने बाद में तकरार भी किया ताकि याद रहे। आपसे दुआओं की इल्तिजा है बेहसाब मुग़फ़रत की दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, वो आपने जो सवाल किया, तहज्जुद पहले पढ़े, तरतीब ये है कि सोकर उठा है तो अब तहज्जुद पहले पढ़े, बाद में वितर पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सफ़र के दौरान तकलीफ़ें, परेशानियाँ, कोई ना कोई मामला, बाद इस्लामी भाई ना दिल छोड़ देते हैं, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। तो क्या तकलीफ़ों पर, दीनी सफ़र पर जाना हम छोड़ दें? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल ले लेते हैं। करबला में इनका काफिला गया और आपके साथ जो रुफ़क़ा थे, साथी थे, उस सफ़र में, उस मारेके में तकलीफ़ें थी या राहतें थी, ये सबको पता है। यानी कोई ऐसा सवाल ही नहीं है कि कोई ऐसी रिवायत हो या कोई मतलब हिकायत हो कि जिसमें कोई कहे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हम गए तो बस फंस गए थे या ये हुआ वो हुआ, नऊज़ु बिल्लाह। बल्कि सारे के सारे शहीद हो गए, 2 के अलावा। गर्मियों का मौसम है, जिस्म के अंदर बू ये रहती है, नहाने के बाद भी और फिर मस्जिद में भी जाना पड़ता है। इसमें बेटे वो ग़िज़ाओं पर गौर फरमा लीजिए। बाज़ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं उनसे भी बू पैदा होती है। अल्लाह ना करे अगर बदबू दूसरों को भी आती है मस्जिद में, तो मस्जिद का दाखिला शरन हराम है। जीरो अल्कोहलिक भी बॉडी स्प्रे आता है, चंद चीज़ें आती हैं, अगर कोशिश करें तो शायद बदबू से बचकर ये मस्जिद की हाजिरी में हो सकता है कि कामयाब हो जाएं। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, मुर्दा दिलों को दे जिला, हादी है तलबगार के, तलबगार के। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, सच्ची है ताबीर ये दीने मती की, है इससे तशहीर ईमानो यकीन की। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक की जन्नत कह सकते हैं? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की, अल्लाह मालिक बनाने वाला, फिर हम कैसे मना कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। कुरान पाक में फरमाया गया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया, ये जन्नत हम मालिक बनाएंगे उसको जो मुत्तकी होगा। क्या हुजूर से बढ़कर कोई मुत्तकी है? जो भी जन्नत में दाखिल होगा हुजूर के सदक़े में दाखिल होगा। यह आयत कई माना का एहतमाल रखती है और हर एहतमाल हुज्जत हुआ करता है। कई एहतमाल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एहतमाल हुज्जत नहीं है, ये मुसल्लमा कायदा है उसूल तफसीर का। जन्नत का मालिक अल्लाह, और अल्लाह जो है वो जन्नत का मालिक बंदों को बना रहा है। एक होता है मजाजी निस्बत, अगर हुजूर मालिक हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर अल्लाह के दिए से मालिक हैं। हुजूर मालिक है का मतलब ये है कि जन्नत में भी आपके तसर्रुफात हैं, आपके इख्तियारात हैं। सुभान अल्लाह। एक साहबी अर्ज़ करते हैं हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह, वज़ू करवाया, हुजूर ने फरमाया रबिया मांग क्या मांगता है? अर्ज़ की असअलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, आपका पड़ोस मांगता हूँ। एक तो ये कि ऐसा सवाल वही कर सकता है जो मजाज हो, कुछ देने का इख्तियार रखता हो। और उन्होंने भी क्या मांगा? जन्नत में हुजूर का पड़ोस, मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना है। ये तो सहाबा इकराम का गमे हयात का सबसे बड़ा हिस्सा था कि दुनिया में हुजूर की ज़ियारत कर रहे हैं, आखिरत में क्या होगा। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु वाला जो वाक़या है वो गम यही तो था उनको कि जन्नत में आपकी ज़ियारत जन्नत में क्या होगा। हुजूर ने क्या फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। बिल्कुल। हसन वल हुसैन सैयदा